ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے ابو شاکر سے کہا کہ تمہارے لیے تو یہ پتھر بے جان ہے اور نہ ہی یہ حرکت کر سکتا ہے۔ تم اس پتھر کے اندر تیزی اور حرکت نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تمہارے علم کی کمی ہے جو تمہیں اس پتھر کے اندر کی حرکت نہیں دیکھنے دیتی۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ پتھر کے اندر کی حرکت کو دیکھ سکیں گے۔ 18th سینچری میں ڈسکور کیا گیا کہ سب کچھ ایٹم سے بنا ہے اور ایٹم میں الیکٹرانز نیوکلیس کے اراؤنڈ حرکت کرتے ہیں۔ اب سوچو آج سے صدیوں پہلے اگر کوئی انسان ایٹم کے اندر کی موومنٹ کو بتا دے تو اس کا علم کس حد تک ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم کے قصے جان کر حیران رہ جاؤ گے، لیکن اس سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہسٹری کو جانتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام 702 یا 700 عیسوی کو مدینہ میں پیدا ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کربلا سے 22 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، یعنی کہ آپ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں سے بھی تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی کے پہلے 14 سال اپنے دادا امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ گزارے، جو کہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا بچپن ریلیجن، سائنس اور قرآن سیکھنے میں گزرا۔ کافی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام چھوٹے تھے تو وہ اپنے والد امام باقر علیہ السلام کے بنائے ہوئے انسٹیٹیوٹ میں آتے تھے اور وہاں کے ینگ سٹوڈنٹ سے سیکھنے کی بجائے وہ ان کے ساتھ کئی سیریس میٹر ڈسکس کرتے، یہاں تک کہ فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان امام جعفر صادق علیہ السلام کے سٹوڈنٹ تھے۔ جابر بن حیان الکیمی، کیمسٹری، فارمیسی، فلسفی، ایسٹرونومی اور میڈیسن کے ایکسپرٹ تھے۔ انہوں نے کیمسٹری میں بہت کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے اور بہت سی انوینشنز بھی کی ہیں۔ جابر بن حیان اتنے بڑے سائنٹسٹ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے سٹوڈنٹ تھے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ جو کہ اسلام کے بہت بڑے اسکالر ہیں، وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے سٹوڈنٹ تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہزاروں سٹوڈنٹ تھے جن میں بہت سے فلسفر اور سائنٹسٹس بنے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے علم کو بہت پروموٹ کیا۔ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک نوجوان کو دیکھا جس کے کپڑوں پر قلم کی سیاہی لگی ہوئی تھی اور وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اپنے کپڑے چھپا رہا تھا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قلم کی سیاہی سے پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ مرد کا عطر اور آتھرز کا زیور ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے دور میں بہت سے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بھی کھولے جس سے کئی لوگوں نے علم حاصل کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام قرآن، سائنس، حدیث، جورسپروڈنس اور ایتھکس کے ماسٹر تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فزکس میں کئی کنٹریبیوشنز کیے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اوپیسٹی اور ٹرانسپیرنسی مٹیریلز جیسے لاز بنائے۔ آج یہ تھیوری لاز آف فزکس میں سے ایک ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بچپن کا کافی وقت اپنے والد امام باقر علیہ السلام کے ساتھ گزارا۔ امام باقر علیہ السلام بھی بہت بڑی علمی پرسنالٹی تھی، اسی وجہ سے یہی علم ان کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام میں منتقل ہوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بچپن سے ہی بہت انٹیلیجنٹ تھے۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام 11 سال کے تھے تو ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام کلاس میں انٹر ہوئے جہاں لوگ ایسٹرونومی ڈسکس کر رہے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ زمین فلیٹ نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور جس طرح 24 گھنٹوں میں دن رات بدلتے ہیں، اس وجہ سے زمین کا فلیٹ ہونا ممکن نہیں ہے۔ وہاں بیٹھے سب لوگ یہ سن کر حیران ہو گئے کہ ایک 11 سال کا لڑکا اتنا کچھ کیسے جانتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے 12 سال کی عمر میں ایرسٹاٹل کی 4 ایلیمنٹس تھیوری کو بھی ریجیکٹ کر دیا تھا اور فرمایا کہ مجھے حیرانی ہے کہ ایرسٹاٹل جیسا انسان آخر کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس دنیا میں صرف 4 ایلیمنٹس ہیں۔
जमीन, हवा, आग और पानी। जबकि जमीन कोई एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। जमीन में मौजूद हर मेटल एक एलिमेंट है। एरिस्टोटल की इस 4 एलिमेंट्स थ्योरी पर 1000 साल तक लोग यकीन करते रहे, क्योंकि एरिस्टोटल बहुत बड़े फिलोसफर थे। इसलिए किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि इनकी इस थ्योरी को रिजेक्ट कर सके। लेकिन 12 साल के लड़के इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इसे गलत साबित किया और आज केमिस्ट्री ने 118 एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया है। एक दिन जाबिर इब्न हय्यान, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, उन्होंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपके बीमारी के बारे में क्या ख्यालात हैं? क्या बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है या फिर ये एक्सीडेंटल है? तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बीमारियां 3 तरह की होती हैं। कुछ अल्लाह की तरफ से आती हैं, कुछ हम पैदा करते हैं और कुछ छोटे जानदारों की वजह से होती हैं। जैसे बुढ़ापा एक ऐसी बीमारी है जो अल्लाह की तरफ से आती है, जिससे कोई बच नहीं सकता। इसी तरह कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे कम इल्म और हमारी झूठी ख्वाहिशों का पीछा करने की वजह से होती हैं, जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि ज्यादा मत खाओ और पियो। अगर हम कम खाएं और कम पिए तो हमारा जिस्म कई तरह की बीमारियों से बचा रहता है। और तीसरी तरह की बीमारी वो है जो हमारे जिस्म के दुश्मनों की वजह से होती है। ये दुश्मन बहुत छोटे हैं। इनसे लड़ने के लिए अल्लाह ने इंसान के जिस्म को बहुत बड़ी तादाद में गार्ड्स दिए हैं। ये हमारे जिस्म के अंदर मौजूद हैं, जो कि बहुत छोटे हैं। इन्हें इंसानी आंख देख नहीं सकती। जैसा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि कुछ बीमारियां इंसान के ज्यादा खाने की वजह से होती हैं। मॉडर्न साइंस ने ये डिस्कवर किया है कि कम खाना इंसान की उम्र को बढ़ाता है और ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन लेवल्स को रिड्यूस करता है। और रोजा रखने से बॉडी का ब्लड शुगर कंट्रोल होता है और रोजा रखना इंसान को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से भी प्रोटेक्ट कर सकता है। इसी तरह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुछ बीमारियां इंसान के जिस्म के दुश्मनों की वजह से होती हैं और इनसे लड़ने के लिए अल्लाह ने इंसान के जिस्म में ऐसे गार्ड्स रखे हैं जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने वायरसेस और बैक्टीरिया की बात की है जो इंसान की बॉडी के लिए खतरनाक होते हैं, और वो गार्ड्स इंसान का इम्यून सिस्टम है जो इन वायरस से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह एक बार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ये जो आसमान पर सितारों का झुरमट तुम देखते हो, इनमें से कई सितारे ऐसे हैं जो सूरज से कई ज्यादा रोशन हैं। उस वक्त लोगों को स्पेस के बारे में इतना इल्म नहीं था, तो इस वजह से लोगों ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की इस थ्योरी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की वफात के 12 सदियों बाद ये डिस्कवर किया गया कि यूनिवर्स में ऐसे बहुत से स्टार्स हैं जो कई बिलियन टाइम्स ब्राइट हैं। इन्हें क्वासार्स कहा जाता है। इन क्वासार्स की लाइट 10,000 बिलियन टाइम्स सूरज से ज्यादा होती है। ये इंसिडेंट बहुत कमाल का है। एक दिन एक फिजिशियन मेडिसिन की किताब पढ़ रहा था। उसने किताब पढ़ने के बाद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कहा, यहाँ तक कि आप भी इस इल्म के मोहताज हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमें इसकी जरूरत नहीं, हम जो जानते हैं वो उससे बेहतर है जो तुम जानते हो। तो उस फिजिशियन ने पूछा कैसे? तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम सर्दी से होने वाली बीमारियों का इलाज गर्म दवा से करते हैं और गर्मी से होने वाली बीमारी का इलाज ठंडी दवा से करते हैं। हम खुश्की से होने वाली बीमारियों का इलाज गीली दवा से करते हैं और गीली से होने वाली बीमारियों का इलाज खुश्की की दवा से करते हैं। जैसे ही उस फिजिशियन ने यह सब सुना, उसने कहा कि आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, यही मेडिसिन की असल साइंस है। ये इंसिडेंट तो और भी इंटरेस्टिंग है। एक दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने स्टूडेंट्स को फिलॉसफी सिखा रहे थे। तब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस यूनिवर्स की हर चीज हरकत में है। अगर ऐसा ना होता तो चीजों की शेप वैसी ना होती जैसी अब है। तो जाबिर बिन हियान ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या आपको पूरा यकीन है कि हर चीज हरकत में है? तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मुझे पूरा यकीन है। तो जाबिर ने पूछा, क्या आवाज भी हरकत करती है? तो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, हाँ आवाज में भी हरकत होती है, लेकिन आवाज की रफ्तार रोशनी की रफ्तार से कम है।
17th सेंचुरी में गैलीलियो गैलीली जैसे साइंटिस्ट्स के कंट्रीब्यूशन से यह डिस्कवर किया गया कि साउंड की स्पीड लाइट की स्पीड से स्लो होती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दौर में लोगों का यही मानना था कि अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है और सूरज, चांद और दूसरे प्लैनेट्स इसके अराउंड घूमते हैं। यहाँ तक कि उस वक्त से पहले फेमस ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल का भी यही मानना था। लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया और फरमाया कि जमीन सूरज के अराउंड घूमती है और जमीन खुद अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। आप बेहतर जानते हैं कि कौन सच्चा था। 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने यह डिस्कवर किया कि जमीन सूरज के अराउंड घूमती है, ना कि सूरज जमीन के। एक दिन अबू मुस्लिम ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि वो कौन सी चीज है जो सूरज को चांद से ज्यादा गर्म बनाती है। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने सूरज को आग के नूर और पानी की शफाफियत से पैदा किया है। इस पर एक के बाद एक साथ लेयर्स लगाई और फिर इसे आग के कपड़े पहनाए, फिर ये चांद से ज्यादा गर्म हो गया। मोहम्मद बिन मुस्लिम ने पूछा कि चांद को कैसे बनाया गया, तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने चांद को आग की रोशनी और पानी की सफाई से बनाया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नासा को मून के शैडो रीजन्स में आइस की शेप में पानी मिला है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की वफात 765 ईस्वी में हुई थी। शिया सोर्सेज के मुताबिक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को अल-मंसूर ने जहर देकर शहीद किया था। आप देख सकते हैं कि इस्लाम में हमारे पास कितनी कमाल की इल्मी पर्सनालिटी थी, लेकिन फिर भी हम कभी इनकी बात नहीं करते। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी नस्ल जैसा इल्म न किसी के पास था और न होगा।